So, my dear ones, today again we have a listening session, and in this listening session, I will tell you a piece of writing, and you have to listen to it so carefully so that you can understand it. If you find any words difficult, it is your duty to write them into your notebooks. And if you focus on listening, definitely you would be able to write the spellings of different words. So now listen to it so carefully. So, my dear ones, you know very well that we are human beings. We come across a lot of things in our life, but you are still young. But as you know, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, दोबारा नहीं बोलूंगा मैं आज इसको. But as you grow older, you will realize how inwardly man goes through hell, goes through great misery, because he is in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his gods. He is in sorrow and confusion, and there is no love, no kindliness, no generosity, and no charity. And a person may have a PhD after his name, or he may become a businessman with houses and cars. But if he has no love, no affection, kindliness, no consideration, he is only, he is really worse than an animal, because he contributes to a world that is destructive. So, while you are young, you have to know all these things. ये मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ. You have to be shown all these things. You have to be exposed to all these things so that your mind begins to think. Otherwise, you will become like the rest of the world. And without love, without affection, without charity and generosity, life becomes a terrible business. That is why one has to look into all these problems of violence. Not to understand violence is to be really ignorant, is to be without intelligence and without culture. That's it. आप पूछो पहले राउंड में, आपको कुछ पूछना है तो, कोई मीनिंग सर कोई बात. हाँ. सर जेनिसिटी क्या होता है? उदारता. मतलब सर? जिसमें हम अपना, मतलब जनरसिटी का मतलब एक तरीके से कि हम अपना उदार पर्सनैलिटी रखते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं, चीज़ों को आसानी से कर लेते हैं या करने देते हैं. सर चैरिटी? चैरिटी का मतलब होता है दान, सर इनवर्डली? अंदर की तरफ. लाइफ हमारी दो तरफ से होती है, इनवर्डली एंड आउटवर्डली, ध्यान रख लेना. सर इग्नोरेंट? इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता.
सर टेरेबल। हैं? टेरेबल। भयानक, अच्छी नहीं सर लगी। सर सर हाँ, एक एक जना बोला करो। हाँ, सर कंट्रीब्यूट्स का इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है? योगदान। और एक्सपोज्ड का इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब? एक्सपोज्ड का मतलब ये है कि अपने को दिखाना किसी चीज को, अपने सामने लाना किसी चीज को, एक्सपोज करना। और एक्सपोज हो जाना मतलब? वही सेम चीज है, खुल जाना, किसी को दिख जाना, किसी को पता सर चल पर्दा जाना, फाश। किसी को पता अच्छा चल जाना, ओपन हो जाना किसी चीज का। सर पर्दाफाश कह तो सकते ऐसे बोलते हैं ना कि पर्दाफाश भी ही कह गॉट सकते एक्सपोज्ड, हैं। ही गॉट एक्सपोज्ड। वही मतलब हुआ ना कि वो एक्सपोज हो गया, वो उसका पता चल गया। सर सच का सामना आगे हो गया। सच का सामना कर दिया मतलब किसी चीज के बारे में किसी का पता चल जाना, एक्सपोज हो गया वो, यानी कि उसके बारे में पता चल गया। सीखो चीजों को, कुछ नहीं रखा है जिंदगी में। कर लो क्यों? अपने आप को तैयार। हाँ बोलो। सर माइग्री मतलब? हैं? माइजरी, हाँ तकलीफ, सर, एक बार स्पेलिंग बताना। दुख, MISCRY। एक मिनट, इसका मैं मिजरी, मिजरी होता है, मिजरी। हो गया। चलिए आगे, एक बार और पढ़ रहा हूं मैं। यू आर स्टिल यंग, बट एज यू ग्रो ओल्डर you will realize how inwardly man goes through great misery, because he is in constant battle with himself. खुद से ही लड़ता रहता है, with his wife, with his children, with his neighbors, with his gods. भगवान से भी लड़ लेता है आदमी। इनवर्डली, मन ही मन में। he is in sorrow and confusion, and there is no love, no kindliness, no generosity, and no charity. खत्म हो गई है इंसान के अंदर से ये चीजें। दुखी रहता है, कंफ्यूज रहता है, कहीं प्यार नहीं, कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। एंड अ पर्सन may have a PhD after his name, or he may become a businessman with houses and cars, but if he has no love, no affection, no kindliness, no consideration, he is really worse. बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है worse. He is really worse than, कंपैरेटिव डिग्री को यूज किया हमने, देन भी आ सर गया साथ में। सर सर सुपरलेटिव क्या होती है? Worst, ई को हटा के टी लगा देंगे। He is really worse than an animal because he contributes to a world that is destructive. So while you are young, you have to know all these things. You have to be shown all these things. You have to be exposed to all these things. ये पैसे वॉइस के स्ट्रक्चर चल रहे हैं। You have to be shown all these things. आपको इन सब चीजों को दिखाना होगा, दिखाई जानी चाहिए आपको ये सब चीजें। You have to be exposed to all these things.
आपके सामने ये सारी चीजें लाई जानी चाहिए, सो दैट योर माइंड begins to think. Otherwise, you will become like the rest. Rest का मतलब बाकी, बचा हुआ, like the rest of the world. And without love, without affection, without charity and generosity, life becomes a terrible business. यहाँ पर बिजनेस का मतलब व्यापार से नहीं है, काम से. That is why one has to look into all these problems of violence. Not to understand violence is to really ignorant, is to be really ignorant, is to be without intelligence and without culture. Means there is no place of violence in our society. We must understand what is violence, and if we are really ignorant, we do not understand what is violence, means we are without intelligence and without culture. Yes, अब पूछना है. सर sorrow. दुख, तकलीफ. सर constant. एक जना. affection, अफेक्शन का मतलब प्यार, स्नेह. सर consideration. विचार करना किसी भी चीज पर. हम लोग सोचते नहीं है किसी को और को भी तकलीफ हो सकती है, इस तरह का कंसिडरेशन हमको करना चाहिए. We must have a thought of others, that if we do anything, it may be harmful or it may be inconvenient to anyone else. So we should have such consideration about different things and about different people. सर PhD क्या होता है? PhD क्या? PhD की डिग्री होती है. PhD की पढ़ाई की एक डिग्री होती है PhD. चैरिटी. चैरिटी का मतलब दान. सर डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी. सर constant. लगातार. सर मतलब frequently ना. फ्रीक्वेंटली अलग चीज है. सर इसका थोड़ा synonym टाइप कैसा होगा? फ्रीक्वेंटली का मतलब तो होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है. थोड़ा सा हो सकता है सिनोनिम, हल्का सा हो सकता है. फ्रीक्वेंटली थोड़ा सा अलग हो गया. मतलब बार बार किसी एक उसके हिसाब से चीजों का होना, और कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार वो चीजें करते रहना. थोड़ा सा फर्क है. आई गो टू दिल्ली फ्रीक्वेंटली, बार बार जाता हूँ. आई गो टू दिल्ली, क्या वर्ड था वो? constant, थोड़ा सा फर्क आ गया ना उसमें. सर फ्रीक्वेंटली का मतलब बार बार जाता हूँ, कॉन्स्टेंटली का लगातार जाता ही रहता हूँ. सर थोड़ा सा सर लेकिन कुछ सिमिलरिटी हो सकती है. हाँ बोलो. सर रेगुलरली भी यूज करते हैं. वैल्यू बदलती नहीं है, कांस्टेंट वो होता है. हाँ, सर रेगुलरली नियमित रूप से कह सकते हो आप. थोड़ा सा सिमिलर हो सकता है इसका. सर कंसिस्टेंसी में क्या रेफरेंस है फिर? सेम है वो. ओके सर. सर ये लास्ट वाली लाइन थी ना, वायलेंस. इग्नोरेंट. सर इग्नोरेंट. है. बाकी आपको थोड़ा सा डिक्शनरी यूज करना चाहिए अपनी वोकैबुलरी पावर बढ़ाने के लिए. सर इग्नोरेंट. इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी, अज्ञानता होना, ज्ञान नहीं होना. सर इग्नोरेंट तो वो होता है ना जिसे बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है. नहीं. सर तो इग्नोरेंट वो होता है जैसे कि अज्ञानी, जिसके पास ज्ञान नहीं है. सर मतलब इलिटरेट. जिसको नहीं, इलिटरेट नहीं. इलिटरेट मींस, लिटरेट अलग चीज होती है. लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना, जिसको पढ़ना लिखना आता हो.
जिनको बिल्कुल पढ़ना और लिखना नहीं आता उनको हम इलिटरेट कहते हैं। अज्ञानी का मतलब जो समझता ही नहीं है किसी चीज को, जिसके पास ज्ञान नहीं है, ये अलग चीज होती है। बहुत सारे अनपढ़ लोग होते हैं, इलिटरेट पीपल होते हैं, दोज हैव सो मच नॉलेज, सो दे आर नॉट इग्नोरेंट। सर फिर ज्ञान किसके पास नहीं होता? इस ज्ञान बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। तुम्हारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं स्कूल में मोस्टली उनके पास ही ज्ञान नहीं है, ये लो पूछ लो मेरे से। तुम्हारे जो स्कूल चला रहे हैं जो लोग, उनके पास ही ज्ञान नहीं है। उनको ही नहीं पता है कि पर्पज क्या है हमारा स्कूल चलाने का। उनको एक ही पर्पज पता है, बस पैसा कमाना है। तो वो अज्ञानी हो गए कि नहीं हो गए? आप अगर आपको इतना समझाया जा रहा है फ्यूचर की चीजों को लेके, आप समझ नहीं रहे, कोशिश नहीं कर रहे, तो आप अज्ञानी हो गए। और क्या हो गए आप? यू आर इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई कर लिखाई करने के बावजूद भी आदमी इग्नोरेंट रह सकता है। इग्नोरेंट इज अ डिफरेंट थिंग। जरूरी नहीं है कि हर पढ़े लिखे आदमी को ज्ञान हो। नहीं है ना तुम्हारे टीचर्स को ज्ञान? मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को ज्ञान था कैसे सिखानी है इनको अंग्रेजी, मैंने सिखा दी। और वो जो बड़े बड़े जो पढ़ा रहे हैं, पीएचडी की डिग्री लेके, एमए की डिग्री लेके, नहीं सिखा पाए ना आज तक तुम्हारे को अंग्रेजी। उनको ज्ञान ही नहीं था कि अंग्रेजी कैसे सिखाई जाती है। आगे बोलो। बोलो। सर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस का मतलब बेटा बुद्धि से हो गया ना। हमारी जो सोचने की शक्ति होती है, हमारी जो बुद्धि होती है, उसकी काम करने की शक्ति कहलाती है इंटेलिजेंस। हम किसी को कहते हैं कि यू आर इंटेलिजेंट। हमने अभी कहा कि गर्वित बहुत इंटेलिजेंट है, हमने अभी कहा कि अंजलि बहुत इंटेलिजेंट है। आप इंटेलिजेंट तो हैं, नो डाउट, पर हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस हमारे अंदर है तभी तो हम इंटेलिजेंट हैं। हमारे पास पैसा है, खूब रुपया है, पैसा है, तो भी तो हम रिच हैं। तो जो यस सर। भगवान ने जो इंटेलिजेंस हमको दी है, अगर हम उसको काम में नहीं लेंगे, ये लोग काम में नहीं लेते, नहीं लेते। अब अगर काम में नहीं लेते हैं, उसको काम में ही नहीं लेते हैं, तो फिर बताओ वो इंटेलिजेंस काम करेगी क्या? किसी के अंदर कितनी भी नो इंटेलिजेंस सर। हो, कितनी भी बुद्धि हो, कितनी भी बुद्धि हो, वो काम में ही नहीं लेगा उसको, तो फिर किस काम का वो? भाई साहब, आपके अंदर जो चीज है आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा। आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ेगी। इंटेलिजेंस का मतलब होता है हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति हो, और वो है। सर मतलब इग्नोरेंट एक टाइप का स्टूपिड हो गया। स्टूपिड तो नहीं कह सकते आप, स्टूपिड इज अ डिफरेंट थिंग फूलिश ना। वो तो मूर्ख हो गया। मूर्ख अलग चीज हो गई। मूर्ख और अज्ञानी में फर्क होता है। सर इनोसेंट। इनोसेंट नहीं, इनोसेंट कैसे कहते हो? इनोसेंट तो सर बेचारा अबोध होता है। जैसे आप लोग इनोसेंट हो इंग्लिश के मामले में, आपको क्या पता क्या चीजें कैसे होती हैं, आपको जो पढ़ दिया वो सर समझ। पर्पसलेस। पर्पज लेस भी नहीं होगा। सर मैं आपको कुछ और कह रहा था। मैं आपको कह रहा था कि इंटेलिजेंस कैसे काम में लिया जाता है। सर ये तो एक फैक्ट है ना क्या? कि ह्यूमन अपनी लाइफ में मतलब 1 से 2% ही यूज करता है शायद अपने ब्रेन को। चलो ठीक है, फैक्ट है, वो भी तो यूज नहीं कर रहे हैं। यस सर। अब अगर ये लड़की दा कोई और बोल रही है, किसकी कमी मान रहे हो आप? अब ये तो है नहीं कि इसको पता नहीं है कि दा है, ये भी नहीं कि दा इसको पढ़ना नहीं आता, आता है ना पढ़ना, फिर भी उसको ये और बोल रही है। क्यों भाई? अब बुद्धि काम में नहीं ले रही, दिमाग ही नहीं लगा रही अपना। देखे तो सही उसको क्या लिखा हुआ है, फोकस ही नहीं है कुछ भी। उसके बिना इंटेलिजेंस क्या करेगा? तुम्हारा कितना भी तुम्हारे को दिमाग तुम्हारा तेज हो, एग्जाम में अगर आप ढंग से फोकस करके अपना काम नहीं करोगे तो क्या होगा? आ जाएंगे नंबर। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, क्लास में बैठ के अगर आप अपना परफॉर्म नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, देन इंटेलिजेंस किस काम की?
मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं रोटी पे खर्च नहीं कर रहा, मैं खर्च नहीं कर रहा उनको और परेशान हो रहा हूं मैं। होंगे मेरे पास पैसे, किस काम के वो पैसे मेरे पास? सर्दी लग रही है, कपड़े हैं मेरे पास, पहन ही नहीं रहा मैं, तो ये थोड़ी कपड़े नहीं है, कपड़े तो हैं, पहन ही नहीं रहे आप। अब ये काम कौन करेगा? ये तो यही करेंगे ना। कौन करेगा? अभी आज अगर अनवी कर रही है, लक्ष्मी कर रही है, आज अगर गौरव कर रहा है, आज अगर काजल कर रही है, आज विपिन कर रहा है, तो ये कर रहे हैं ना, तभी तो मिल रहा है ना। ये नहीं कर रहे, नहीं है फोकस इनका। डू भी लगा रहा है, विल भी लगा रहा है। अब बताओ आप, हंसने की बात है, रोने की बात है? बता दो आप ही। भाई साहब डू भी लगा रहे हैं, भाई साहब विल भी लगा रहे हैं, जबकि एक बार टेंसेस पहले करवा दिए, दोबारा फिर करवा दिए। भाई साहब को ये नहीं पता चल रहा है कि डू आएगा, विल आएगा, क्या नहीं आएगा। अब क्या कहें, क्या इंटेलिजेंट नहीं है? और कबाड़ खाने में डाल रखा है इसने अपनी इंटेलिजेंस को। यूज ही नहीं करता, सोचता ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाता, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लगा दो बस। इंटेलिजेंस क्या करेगी इसमें? क्या करेगी इंटेलिजेंस इसके अंदर? भगवान ने तो दी है। सर हाँ, सर ये जो थ्योरी है what you would do, you would only iterate the facts, you would iterate the stories, the letters, the paragraphs, everything. You had no idea regarding grammar. Did you have? Even you did not know what is the correct form of verb. Did you know? No. You had no idea about it. You had no idea how to develop a story, how to develop outlines, how to develop some points, given points. Did you have any idea? You were just iterating, nothing else. But it means not that you had no intelligence. You had. What did I do? I gave the proper way to your intelligence. Now you are doing. But we think that if anyone gets the best marks, 90% marks, 95% marks in the examinations, that is intelligent. No. That is only the result of iteration. Iteration. If such person, such student is given some points, some outlines to develop them into a story or paragraph, that person would be failed. So, what is the measurement of intelligence? If you think that marks are the marks is the measurement of intelligence, you are wrong. Am I right or wrong? But unluckily, we all have such aspect in our minds. समझो जरा किसी बात को। वरना हमने इस जिंदगी में अच्छे अच्छों को बर्बाद होते हुए देखा है। ध्यान रखना इस बात को। पेरेंट्स जो होते हैं ना, दे आर विद अस ओनली टिल अ लिमिट। ध्यान रखना, they are with us but till a limit. In future, definitely you will have to lead your life your own. Things that you face in your life, that you come across in your life. सर Hmm. सर ये कोई वायलेंट की वर्ब नहीं होती क्या? Maybe committing violence होगा फिर यहाँ पर ये। ओके सर। Just a minute.
देखना पड़ेगा मेरे को यार, बेटा मैं देख के बताऊंगा इसको, मैंने कभी देखी नहीं वर्बिस की। कमिटिंग वायलेंस हो सकता है। ओके सर। और बोलो, कुछ पूछना है तो। सर ये लास्ट वाला जो सेंटेंस आपने बोला था ना पैराग्राफ में, वो रिपीट कर दो। कमिट आएगा बेटा, टू कमिट वायलेंस, ठीक है। सर मैंने क्या वोलेंस बताया था, को एक कमिटी बार बताया था ना मैंने, क्या बताया था मैंने? ये यस सर सर वो कमिट वायलेंस अच्छे आ हाँ जाएगा। कमिटी आएगा, वो कमिट आएगा। हाँ लास्ट वाला सेंटेंस क्या था? नहीं सर, जो आपने पैसेज में बोला था। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस, समझ लीजिए अब यहाँ पर, धीरे धीरे पढ़ रहा हूं मैं। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज, अगर वायलेंस को हमने नहीं समझा तो ये क्या है? इज टू बी रियली इग्नोरेंट। तो वास्तव में ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे हम इग्नोरेंट हैं, जैसे हमको कुछ जानकारी नहीं है, जैसे हम अज्ञानी है, जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है। इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस, अगर हमने वायलेंस को नहीं समझा तो इसका मतलब है कि हम बिना बुद्धि के हैं और बिना संस्कृति के हैं। वी आर नॉट कल्चर्ड। इफ वी आर वायलेंट वी आर नॉट कल्चर्ड। आज के टाइम में, इन टुडेज वर्ल्ड, इन प्रेजेंट वर्ल्ड, देयर इज नो प्लेस फॉर वायलेंस। ये नहीं कि आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो आप उसको मार ही दो जान से। आप कोर्ट में जा सकते हो, इसीलिए कोर्ट्स बने हुए हैं। सभ्य समाज के अंदर देयर इज नो प्लेस ऑफ वायलेंस इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। And still you don't understand what is the meaning of what is violence, means you are ignorant, you have no intelligence, you have no culture. Is it clear? और कोई बात? सुन लिया आपने, अच्छे से इसको समझ लिया? वेरी गुड।